Yes, but I have discussed with you that why the Human Genome Project it is known as a mega project. Okay, so this project is known as a mega project because of the cost that generally appears for this project. The scientists have estimated a less cost, but as the scientists, they have used advanced techniques of biotechnology, which are the expensive one. So that's why this project, it actually completes by using those techniques. So I have already discussed with you these techniques are the PCR technique, polymerase chain reaction, agarose gel electrophoresis. It is a kind of a technique by which DNA fragments, they can be separated, and PCR technique is a kind of a technique by which you can amplify the DNA and you can easily study what kind of genes are present on the DNA. Because जब आप पर्टिकुलर सेगमेंट जो है डीएनए की उसको इनलार्ज कर लेंगे, उसको एम्पलीफाई कर लेंगे, तो आपको आसानी से जीन्स का पता लग जाएगा जो उस सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, इसके अलावा द साइंटिस्ट दे आल्सो हैव स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर नोन एज restriction endonucleases, and with the help of these enzymes, restriction endonucleases, the scientists they are able to cut the DNA fragments. ठीक है, and how these restriction endonucleases they usually work, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि when these restriction endonucleases they have to cut the DNA fragment, so they generally move over the DNA and find specific type of sequences which are known as palindromic sequences, and on the basis of this, these endonuclease enzyme they cut the DNA fragments from within. ओके बेटा, तो इतनी सारी एक्सपेंसिव टेक्निक्स उन्होंने यूज की कि सबसे पहले उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया, उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स जो इनकी कटिंग की विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंड थर्ड में उन्होंने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया, एंड देयर दे हैव यूज्ड वन टेक्निक व्हिच इज नोन एज agarose gel electrophoresis. उसके बाद उन्होंने जीन क्लोनिंग करवाई। तो आपको बताया था कि जीन या डीएनए फ्रैगमेंट्स की क्लोनिंग करवाने के लिए दे हैव यूज्ड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, and here they have used two type of host. One is bacteria and another is unicellular fungus yeast. तो इनके सेल्स के अंदर उन्होंने डीएनए फ्रैगमेंट्स को इंसर्ट करवाया और उनके और ज्यादा क्लोन्स तैयार किए, एंड लास्ट में उन्होंने टेक्निक यूज की पीसीआर टेक्निक व्हिच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड थ्रू दिस टेक्निक they when they receive these cloned DNA fragments, they do the amplification of these DNA fragments so that they can be easily studied. ठीक है, उनके ऊपर कौन से जीन प्रेजेंट है उनको आसानी से स्टडी किया जा सके, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी लोकेशन को, और कौन से फंक्शन वो बॉडी में परफॉर्म करते हैं वो स्टडी किए जा सके। ठीक है बेटे, फिर आपको बताया था कि देयर इज अ बिग चैलेंज अमंग द साइंटिस्ट दैट हाउ दे हैव टू स्टोर द enormous data that creates as a result of this project, because this is a mega project and they have to count millions of genes that are present in your body. So if they become successful, ठीक है, they come to know about the structure, location as well as function. Then the next problem is कि अगर ये सारी चीजें उन्हें पता लग जाती हैं, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, और इतने इनॉर्मस डेटा को वो कैसे स्टोर करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया था in yesterday's lecture that first time they have decided कि they should store this data in the form of books. बुक्स में ये स्टोर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक सेल में प्रेजेंट जीन्स जो हैं उससे रिलेटेड सारा डेटा स्टोर करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें टोटल बुक्स कितनी लग जानी है, 3300 बुक्स लग जाएंगी। और हर एक बुक जो है उसमें हर एक पेज जो है उसमें कितने लेटर्स आने चाहिए, 1000 लेटर्स आने चाहिए, और इसके अलावा उस पर्टिकुलर बुक में हाउ मेनी पेजेस शुड बी देयर, 1000 पेजेस शुड बी देयर। ठीक है बेटे, बट देयर इज वन प्रॉब्लम दैट द साइंटिस्ट दे आर फेसिंग एट दैट टाइम, एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम कि द साइंटिस्ट दे वर वेरी मच वरीड अबाउट कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस बुक as they are made up of paper and paper is biodegradable in nature. So it is generally expected that these books which are made up of paper, they can be easily destroyed by certain insects. So storing the information in the form of books is not a suitable option. So later on what the scientists decided that we should store this enormous data
in the form of databases and computerized devices. ठीक है बेटे, तो उन्होंने ये क्या अपने मन में लाया कि हम इस डेटा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम डेटाबेसेस या प्रोग्राम के बेस में स्टोर करेंगे और इन सारे प्रोग्राम्स को हम किस में फीड कर देंगे, कंप्यूटर में फीड करेंगे एंड वी शुड असाइन द कोड वर्ड्स टू ऑल ऑफ दिस डेटाबेसेस. So when a particular person want to study a simple gene, then that person have to feed that specific code word related to that gene, and as soon as the person it enters the code word, the entire information about the gene, about its structure, location, function and disorders, all of these they come on the screen and the patient and the person is able to study that. Okay, so later on उन्होंने कंप्यूटर का यूज किया. So because of using computer first time in the field of biology, a new branch of biology that comes into existence, and that is known as bioinformatics. Okay, there are certain goals that are present in front of the scientist that they must have to be fulfilled with this project. And what are these goals? तो देखो सबसे पहला गोल जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो ये था कि they have to identified all the genes that are present in the human genome, and the number of these genes may be expected as 20,000 to 25,000 genes. ठीक है, तो इसका नंबर जो है वो 20,000 से 25,000 जीन्स का हो सकता था. तो इन सारे जीन्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करना था. एंड सेकंड था कि दे हैव टू डिटरमाइन 3 बिलियन बेस पेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन जीनोम. ठीक है, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो हैं उनके सीक्वेंस को भी वो डिटरमिन करना चाहते थे जो कि ह्यूमन डीएनए जो है उसको बनाते हैं. ओके बेटे, फिर कहते हैं कि अनदर थिंग इज कि व्हेन सच अ इनॉर्मस डेटा क्रिएट्स, so they should store this data in the form of databases, and for this purpose they have to use improved tools. ठीक है, तो उनके लिए उन्हें इम्प्रूव टूल्स की जरूरत थी. वो ऐसे कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस चाहते थे जिससे कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेफली सिक्योर मैनर में स्टोर हो सके. ओके, फोर्थ पॉइंट इज कि व्हेन दे कम टू नो द फंक्शन of every gene and what kind of enzyme that particular gene it actually produced, when such type of information is there with the scientist, then the next goal is that they have to hand over this kind of information related to that gene to the respective industries. Okay, अगर किसी ऐसे जीन के बारे में पता लगा है कि कोई ऐसा एंजाइम या ऐसा प्रोटीन वो बनाता है जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन उन्होंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हैंड ओवर कर दी है. अगर वो किसी ऐसे जीन का फंक्शन जान गए हैं जो बॉडी के अंदर ऐसा एंजाइम बनाता है जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स का जो एक्स्ट्रा लेवल है उसको कंट्रोल करता है, मींस इंसुलिन के सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे शुड बी सेंड टू अनदर इंडस्ट्री एंड दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ओके बेटा, इसके अलावा कहते हैं कि whenever some persons they have started a new project, then there may be some other group of people who are against that particular project. So there may be many kind of ethical, social issues that associated with that project. So all of these ethical, legal and social issues they must have to be sorted out by the scientists. Another thing is कि उन्होंने ये सारे issues जो इस project से जुड़े थे उनको sort out भी करना था. Okay बेटे, अब आपको ये बताया है कि दिस प्रोजेक्ट व्हिच इज अ मेगा प्रोजेक्ट, इट वाज फर्स्ट initiated by US Department of Energy and National Institute of Health, and later there is another organization from UK, that is United Kingdom, and the name of the organization is Wellcome Trust. So this Wellcome Trust they joined the US organization. So Human Genome Project is a joint venture of US Department of Energy and National Institute of Health, and it is later joined by the Wellcome Trust of United Kingdom. Okay, but this project worked towards determination of complete DNA sequences of humans. ठीक है, humans में जितने भी complete DNA sequences है उनको determine करना जो है इस project का main goal था. ठीक है, and you know that कि DNA is the storehouse of genetic information. So determining its sequence of base pairs can solve many kind of problems. ठीक है, that are generally related with the medical field. Okay, and so many things that you use in your daily life.
फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है. यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ सर्टेन जीन्स दैट आर रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, एवोल्यूशन. तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो अगर हम इन सारे जीन्स के बेस पेयर्स जो हैं उनकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे हम मेडिकल, एग्रीकल्चरल, एनवायरनमेंट और एवोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते थे. ठीक बेटे. उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज नोन एज अ मेगा प्रोजेक्ट. तो आपको बताया था बिकॉज द मेजर गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू काउंट 3 to 10⁻⁹ बेस पेयर्स. तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि पूरा प्रोजेक्ट जो है अगर उसमें हमने 3 to 10⁻⁹ बेस पेयर्स जो हैं उनको हमने अगर काउंट करना है और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द जीन. तो उस केस में अगर एक बेस पेयर के बारे में हम बात करें तो वन बेस पेयर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग जो है वो कितनी होगी, $3 होगी. और इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट जो है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 10⁻⁹ बेस पेयर, तो इसलिए उसकी कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग जो है वो कितनी हो सकती है, $, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 बिलियन. ओके बेटे. तो as they have to count 3 to 10⁻⁹ billion base pairs, so enormous sequence data is generated as a result. तो उन्होंने फिर मैंने आपको बताया कि initially they have decided that they should store the information in books, but later on they take the final decision that storing the information in book is not a suitable option. So we should adopt another one. We should store that enormous data which is created as a result of this product in the form of databases, that is a kind of programs in computer, and we should assign code word to those databases. Okay बेटे. तो कहते हैं कि not only the human genome, ठीक है, इसमें जितने जीन्स प्रेजेंट हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट उन्होंने नहीं किया. The genomes of some of the non-human model organisms, their genomes they are also counted by the scientists. तो उसमें बैक्टीरिया थे जो जनरली जेनेटिक्स में यूज होते हैं जैसे E. coli बैक्टीरिया, ठीक है. फंगस थी, यूनिसेलुलर फंगस, यीस्ट, उसके भी जीनोम को काउंट कर लिया गया. एंड देयर इज कैनाबिरैप्टिस एलिगेंस. कैनाबिरैप्टिस एलिगेंस जो है वो एक नीमाटोड का नेम है. इट इज अ काइंड ऑफ ए राउंड वर्म. ठीक बेटे. उसके बाद वो कहता है कि ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला व्हिच इज अ फ्रूट फ्लाई, इट इज यूज्ड बाय ए मॉर्गन. तो उसके भी कंप्लीट जीनोम को फाइंड आउट कर लिया गया. एंड इसके अलावा राइस एंड अरेबिडोप्सिस, ठीक है, राइस के जैसी ही एक क्रॉप होती है, उनकी भी सीक्वेंसिंग की गई. तो सिर्फ ह्यूमन जीनोम जो है उसी की सीक्वेंसिंग नहीं की गई इस प्रोजेक्ट में, इन सभी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसिंग भी की गई. ओके बेटे. नेक्स्ट इज कि व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स द साइंटिस्ट दे हैव यूज्ड इन सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम. ठीक है. ह्यूमन जीनोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने कौन सी मेथड यूज की है. तो उसमें देखो 2 methods they were generally used by the scientists at that time. Okay, first is known as express sequence tags and second is known as sequence annotation. Okay बेटे. how both the methods they are differ from each other. तो अगर हम express sequence tags की बात करते हैं तो here the scientists they decided that कि from the DNA, ठीक है, actually messenger RNA is formed during the process of transcription. तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो डीएनए से तैयार हुआ है मैसेंजर आरएनए और उसके ऊपर प्रेजेंट जो बेस सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, उन्हीं की हम क्या कर लें, यहाँ पर सीक्वेंसिंग कर लें. उन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस अटैक जो मेथड है उसके अंदर हम क्या करेंगे. ठीक है. देखो यहाँ पे पेज नंबर 119 पर हूँ मैं. तो फर्स्ट अप्रोच was focused on identifying all the genes that are expressed in the RNA, and this technique is known as expressed sequence attacks. ठीक है. And other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence. ठीक है बेटे. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जो थे उन्होंने उसमें उन्होंने ये कहा कि मैसेंजर आरएनए की जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो क्यों ना, क्योंकि हमें पता है कि एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंसेस. तो इट इज बेटर दैट इफ वी वांट टू स्टडी द अबाउट जीन्स देन इट इज बेटर दैट वी शुड सेलेक्ट मैसेंजर आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए.
क्योंकि अगर हम मैसेंजर आरएनए सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है तो उसमें हमारे पास सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे और कोडिंग सीक्वेंसेस ही एक्चुअली जीन्स होते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस द पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स लेटर ऑन। ठीक है, another method that was used by the scientist is annotation, sequence annotation. तो दो scientists who are involved in this method, sequence annotation, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड दैट वी शुड कंसीडर मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए it only contains the exons which are the coding sequences. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोडिंग सीक्वेंसेस वाला मैसेंजर आरएनए लेने की जगह पर हमें उसका मेन सोर्स लेना चाहिए जिससे कि वो मैसेंजर आरएनए बना है। तो here you know that messenger RNA it is actually synthesized from the DNA. So this group of scientists they believe that we should consider the whole genome, that is the DNA, and this DNA it contains exons and introns. बेशक हमें ये पता है कि exons are coding sequences and introns are non-coding sequences, पर उनको ये थोड़ा सा डाउट था कि ये तो हमें मालूम है कि भाई exons या coding sequences प्रोटीन्स बनाते हैं, पर वो ये जानना चाहते थे कि क्या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का भी कोई रोल है जेनेटिक वेरिएशंस में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम मैसेंजर आरएनए को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम अगर जीन सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डीएनए को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए का मदर सोर्स है और उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग बोथ काइंड ऑफ सीक्वेंसेस हैं। तो हमें ये तो मालूम है कि एक्सॉन्स या कोडिंग सीक्वेंसेस प्रोटीन्स बनाएंगे, बट वी शुड आल्सो नो कि what is the function that is actually performed by the non-coding sequences or introns. ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि एक्चुअली मेथड क्या था, व्हाट इज द मेथड। दोनों टेक्निक्स तो उन्होंने यूज कर ली, फिर से बता रही हूँ कौन सी टेक्निक्स उन्होंने यूज की। फर्स्ट टेक्निक जो थी वो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग थी एंड हियर द साइंटिस्ट दे हैव डिसाइडेड दैट वी शुड टेक मैसेंजर आरएनए after processing, because after processing this messenger RNA contains exons which are coding sequences, and we know that the exons they produce the proteins, they act as genes or cistrons. Okay, but another technique is known as sequence annotation, and here the scientists they decided that we should take the source DNA instead of messenger RNA because that source DNA it contains both the coding as well as the non-coding sequences, and whether we know that the coding sequences which are exons they produce the characteristic proteins, but we should also know about the non-coding sequences. Is there any relation between the genetic variations or the non-coding sequences or introns? Okay बेटे, अब वो कहता है कि मेथड उन्होंने क्या यूज किया जीन सीक्वेंसिंग में and what are the steps that are involved in this method. तो देखो फर्स्ट स्टेप जो था इस मेथड में जो यूज किया गया कि they have selected some cells from which they want to isolate the DNA. सबसे पहले उन्होंने कुछ सेल्स सेलेक्ट किए जिसमें से वो क्या करना चाहते थे, डीएनए को आइसोलेट करना चाहते थे। तो उन सेल्स में से उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया। नाउ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि हाउ वी आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द सेल। All of you know very well that inside the cell what is present? Nucleus is present, and inside the nucleus the thread-like structures are present which are known as chromonemata or chromatin fibers. But when the cell division takes place, then these chromatin fibers or chromonemata they assume the shape of a butterfly and they becomes the chromosomes. And you know that each chromosome has how many chromatids? 2 chromatids, and inside each of these chromatids the DNA helix is there. Okay बेटे, now you know that these chromosomes they are made up of 2 things, one is DNA and another is protein. अब उन्होंने अगर DNA को आइसोलेट करना है तो उस केस में वो चाहते हैं कि उनके पास सिर्फ DNA आए, प्रोटीन्स ना आए, तो इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले तो वो जो पर्टिकुलर सेल है उसकी सेल वॉल जो है उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए एंजाइम्स यूज करेंगे। एंड यू नो दैट द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन। उसके बेसिस पे उन्होंने एंजाइम यूज किए। अगर काइटिनस सेल वॉल है उसके लिए उन्होंने एंजाइम यूज किए काइटिनेज, और अगर सेलुलोज से बनी हुई है सेल वॉल उसके लिए उन्होंने एंजाइम यूज किए सेलुलेज। तो सेलुलेज और काइटिनेज एंजाइम ने सेल वॉल को ब्रेक कर दिया एंड इस तरह से डीएनए जो है वो रिलीज हो गया। पर इस डीएनए के साथ क्या थे,
प्रोटीन्स भी थे, इसलिए प्रोटीन्स को हटाने के लिए they have used another sort of enzymes which are known as proteases. तो ये proteases एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके और हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में क्या मिल गया, डीएनए मिल गया. In this way they isolate the DNA. But now what is the problem the scientists are facing? That this DNA, it is a long polymer and it is not possible for them to study the whole DNA at a time. ठीक है, पूरे डीएनए को एक ही टाइम में स्टडी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. तो दे हैव यूज्ड अ स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. ओके बेटे, तो these restriction endonucleases enzymes, they work in a characteristic way. They generally move over the DNA polymer and they try to find out specific kind of sequences that are present on the DNA, and they are known as the palindromic sequences. So as soon as they find the palindromic sequences, they cut the DNA fragment from that side. So in this way, they cut so many DNA fragments from within of the DNA. Okay children, so in this way बहुत सारे DNA fragments आ गई. अब वो कहते हैं कि उन्होंने अब DNA fragments जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड ना कर जाए, इसलिए वो क्या चाहते थे, उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना चाहते थे. तो सेपरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक यूज की, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके बेटे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ काइंड ऑफ ए apparatus in which we have a long tube which act as a container here in this case, and the ends of that long you can say plate or a container, it is connected with two terminals of the battery. You know that there are two terminals in a battery, positive and negative terminal. So one end of the plate is connected with the positive terminal, other end of the plate is connected with the negative terminal. अब उसमें क्या किया, उस प्लेट के अंदर इन्होंने एग्रोस जेल डाल दिया. ठीक है, तो एग्रोस जेल क्या है, एग्रोस जेल इज अ काइंड ऑफ ए सब्सटेंस, अ जेली सब्सटेंस that is actually obtained from sea vegetation or sea weeds which are known as agarose. तो उससे उन्होंने सॉल्यूशन तैयार की, उसको जैसे ही उन्होंने प्लेट पे डाला उसने जेल का रूप ले लिया, एंड उसके बाद दे टुक द डीएनए सैंपल्स इन syringes, and as I have discussed with you कि this container, okay, on the negative terminal has small pores present in that. तो उन्होंने इंजेक्शन की हेल्प से उन सभी पोर्स को जो कि नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी के वहां प्रेजेंट थे, उसके अंदर डीएनए सैंपल्स डाल दिए सिरिंज से. अब आपको पता है कि डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज एंड द हिस्टोन प्रोटीन्स दे हैव पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंडेड होती है. तो जैसे ही उन्होंने बेल्स के अंदर डीएनए सैंपल्स डाले तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज थे, तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो वहां से डीएनए फ्रैगमेंट्स ने मूव करना शुरू किया. तो देयर मे बी सम लाइट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, देयर मे बी सम बल्की फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आइसोलेट दीस फ्रैगमेंट्स, ठीक है, बाय कटिंग द लॉग्स फ्रॉम द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus. इस तरह से उनके पास बहुत सारे जो हैं ऐसे पीसेस आ गए जिसमें एक एक डीएनए की फ्रैगमेंट थी. अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को उन्होंने क्या किया, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर, ओके, उसकी क्लोनिंग करवाने के लिए. तो हियर दे हैव यूज्ड टू टाइप्स ऑफ होस्ट क्रोमोसोम. वन इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड अनदर इज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है बेटे, तो उसके बाद वो कहता है कि इनके अंदर, इन यीस्ट सेल्स के अंदर और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इनके जो क्रोमोसोम्स थे उसमें प्रेजेंट जो डीएनए था, जब उसने रेप्लिकेट करना शुरू किया तो बोथ द हेलिक्स ऑफ द डीएनए दे ओपन, एंड यू नो दैट देयर इज अ प्लेस ऑन द डीएनए व्हिच इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन बाइंड एनी ऑफ द फॉरेन सेगमेंट. तो जो यहाँ पर हमारे पास डीएनए थे, सैंपल डीएनए थे, उनको इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ बाइंड कर दिया. जैसे जैसे होस्ट सेल से नए डॉटर सेल बने, वैसे ही उनके नए डॉटर सेल्स में हमारा डीएनए जो था, सैंपल डीएनए भी रेप्लिकेट हो गया, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे होस्ट सेल्स आ गए which contains our DNA of interest.
In this way, they have done the cloning of the DNA within the host. ठीक है बेटे, एक बार जब उन्होंने क्लोनिंग कर ली, then it is not still possible to read the genes that are present on this DNA because these cloned DNA segments they are the smaller one. So what did scientists do? Scientists ने क्या किया? जो उनके पास cloned DNA fragments आई थी, उन cloned DNA fragments को किसमें डाला? उन्होंने PCR मशीन में डाला और पीसीआर मशीन में एक एक फ्रैगमेंट जो है उसको इनलार्ज कर दिया, एम्प्लीफाई कर दिया, and when these segments they become the amplificated segments, those the scientists they are able to read the genes that are present on those fragments. ठीक है, तो इस तरह से साइंटिस्ट जो है उनको पता लग गया कि कौन सा जीन वहां पे प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद उन्होंने उस जीन जो है उसके स्ट्रक्चर और लोकेशन का पता लगाने के बाद, ठीक है, they try to find out their function कि वो जीन जो है वो बॉडी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखो उसका फंक्शन चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने उस जीन को उस लोकेशन से हटा दिया एंड फिर उन्होंने बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस को ऑब्जर्व किया एंड दे फाइंड आउट दैट सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे आर नॉट गोइंग इन द बॉडी, स्टिल दे आर गोइंग अर्लियर। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उनको पता लग गया कि ये जीन जो है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है, और अगर इस जीन को डिफेक्टिव जीन में अगर ये जीन कन्वर्ट हो जाए या फिर इस जीन का म्यूटेशन की वजह से डिलीशन हो जाए तो बॉडी के अंदर सो एंड सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होंगी और उसकी वजह से बॉडी में कौन सी डिसऑर्डर्स या डिजीजेस क्रिएट होंगी। तो देखो तीन चीजें पता लगा ली, लोकेशन ऑफ द जीन, स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, as well as they have also find out the function and disorders related with that gene. So this they have done for many genes that are associated with different type of chromosomes. Okay, as you know that in human how many chromosomes are there? 46 chromosomes are there. उसी के बेसिस पे उन्होंने हर एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं उनके स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, डिसऑर्डर्स, इनके बारे में जो है पता लगा। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहता है कि सीक्वेंसिंग के अंदर, ठीक है, जब उन्होंने जीन्स की सीक्वेंसिंग करनी थी तो देखो बाकी इंफॉर्मेशन तो उन्होंने जीन की कलेक्ट कर ली है, अब वो जीन जो है वो डीएनए में किस सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड है वो सीक्वेंसिंग करने के लिए दे हैव यूज्ड द सैंगर मेथड। तो सैंगर मेथड जो है उसके अंदर वो कहता है कि द साइंटिस्ट दे हैव ऑलरेडी जनरेट सम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। इसमें जो साइंटिस्ट है उन्होंने पहले से भी कुछ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए हुए हैं और जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें प्रेजेंट जीन्स जो है उनकी हम क्या पता लगाना चाहते हैं, सीक्वेंस पता लगाना चाहते हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने क्या किया, इन ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स के ऊपर रखा। तो उनमें से कुछ फ्रेगमेंट्स जिनके ओवरलैपिंग रीजंस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स के साथ मैच करते थे वो क्या करगी, उन ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स के ऊपर ओवरलैप करगी और इस तरह से जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स थे उसमें जीन की लोकेशन का हमें पहले से ही पता था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओवरलैप फ्रैगमेंट्स over the automated DNA sequences the scientists are able to find out the correct sequence as well as the location of the gene on the chromosome. So this step which is known as Sanger method they have repeated many times. ठीक है, इस स्टेप को उन्होंने कई बार रिपीट किया और इस तरह से they have found all the genes that are present in chromosome 1 and in this way again and again when they are repeating the same steps so they become successful in counting all the genes that are present from chromosome 1 to chromosome 45 because you know that in humans 23 pair of chromosomes means 46 chromosomes are present and out of these 22 chromosome pairs they are the autosomes and one pair is of X chromosome and in male these X chromosomes are X and Y and in female these X chromosomes are X and X। इस तरह से एक क्रोमोसोम के लिए पहले ये सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व किए, फिर उसी तरह से सेकंड क्रोमोसोम के सारे जीन्स जो है आइसोलेट करके उनके लिए ये स्टेप्स इन्वॉल्व किए एंड ऐसा जो है उन्होंने सभी के लिए किया। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो थे उसकी कंप्लीट सीक्वेंसिंग जो है वो 2006 के अंदर कंप्लीट हो गई। ठीक है, और ये लास्ट क्रोमोसोम था जो 24 क्रोमोसोम्स है उनमें से ये लास्ट क्रोमोसोम था। ओके बेटे, उसके बाद एक्स एंड वाई जो है
जो कि यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम थे उनकी भी सीक्वेंसिंग कंप्लीट होगी. Then another very important thing that is still not become a challenge in front of scientists is that when we have find out, we become successful in finding out the location, structure, function, and disorders associated with these genes, and we also know the correct location of the gene on the DNA. Then it is also possible for us to draw the genomic maps, ठीक है, related with the location of those genes. ये तो उसके बाद उन्होंने कुछ फिजिकल मैप्स बनाने शुरू किए जो कि जीनोम से रिलेटेड थे. और इसके अलावा जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इस प्रोजेक्ट से कलेक्ट हुई थी, तो उसमें फर्स्ट था पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, मींस कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको कि हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, ये एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से काम करता है. जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये एंजाइम जो है वो डीएनए के ऊपर जो मूव करता है, तो दे ऑलवेज सर्च फॉर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, एंड वेयर दे फाउंड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस फ्रॉम द वेरी एंड दे कट द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स. ठीक है बेटे, आप सभी सोच रहे होंगे कि व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे नाइट्रोजेनियस बेसेस होती हैं जिनको अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करना शुरू करेंगे आप बैकवर्ड तक जाएंगे, और अगर आप उनको बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करना शुरू करेंगे तो उनकी रीडिंग एक जैसी होगी. ठीक है, तो इस तरह से द साइंटिस्ट दे बिकम सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल मैप्स. And another very important thing is that when these scientists they are working on this human genome project, they become successful in finding out specific sequences of DNA which are repeated themselves in a characteristic way. ठीक है, तो जब वो पूरे डीएनए को स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्हें डीएनए का कुछ पार्ट ऐसा मिला जिसमें प्रेजेंट बेस सीक्वेंसेस जो हैं वो एक ही सीक्वेंस में बार बार रिपीट हो रहे थे. ऐसा 50 टाइम्स भी हो रहा था और 100 टाइम्स भी हो रहा था. तो इसको उन्होंने क्या कहा, सीक्वेंस, इसको उन्होंने बोला रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस. ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो डीएनए में काफी ज्यादा प्रेजेंट है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो है उसके अंदर डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ऐसे नाइट्रोजेनियस बेसेस रखती है जो अगेन एंड अगेन जो है अपने आप को रिपीट करते रहती है. फॉर एग्जांपल, अगर डीएनए की कोई सेगमेंट जो है इसमें बेसेस ऐसे रिपीट हो रहे हैं एजी 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 5 टाइम्स. ठीक है, फिर कोई नॉर्मल सेगमेंट है जिसमें सारे तरह के बेसेस हैं, फिर कोई और सेगमेंट आती है जिसके अंदर बेसेस हैं यू ए या फिर यू ए सी. ठीक है, फिर अगेन यू ए सी, देन फिर अगेन यू ए सी. तो अगर इस तरह से रेपिटेशन हो रहा है तो ऑल ऑफ दीज दे कम अंडर द दिस रेपिटेटिव डीएनए. तो साइंटिस्ट को ये पता लगा कि डीएनए का काफी सारा पार्ट जो है इसमें रेपिटेटिव डीएनए प्रेजेंट है, and this repetitive DNA they shows polymorphism. polymorphism का क्या मतलब होता है, जेनेटिक वेरिएशंस. ठीक है, ये रेपिटेटिव डीएनए जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस रखते हैं, हाई डिग्री ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस रखते हैं, और यही कारण है कि वन इंडिविजुअल इट डिफर्स फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल. ठीक है, तभी हमारे सारे कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, और एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करते हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर. Okay, so this is all about the Human Genome Project. So I am on page number 120. Yes, बेटे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? प्रणव एंड मैथ्यू, बेटा कोई चीज नहीं पता लगी है तो बोले आप. मैम, you are facing any problem? मैम, हाँ जी बेटे बोलिए. मैम इस सारे प्रोजेक्ट को टाइम कितना लगा था? बेटा पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट होने में देखो 1990 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट जो है वो 2003 के अंदर कंप्लीट हो गया था. ठीक है, तो आप गिन लें कि 1990 से 13 इयर्स हो गए. तक काफी टाइम था. 13 इयर्स. हाँ ठीक है, इतने सारे उसके अंदर जो है, जब मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स को आपने स्टडी करना है, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है. देखो एक सेल के अंदर कितने जीन्स हो सकते हैं, तो बॉडी में न्यूमरस सेल्स हैं और सभी के जीन्स को काउंट करना है, तो इसलिए ये काफी लेंथी प्रोसेस था. ठीक है बेटे, तो इसमें से देखो 3 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं. अभी तक मैंने आपको जितना बताया, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट.
ठीक है, तो ऑल पॉइंट्स आर गिवन इन योर बुक, you have to learn those points and write as it is. Another question is कि why the human genome project is known as a mega project. So there is one complete paragraph, paragraph number 2, ठीक है, जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आपको बताया हुआ है कि why it is known as a mega project. And third जो क्वेश्चन हो जाएगा कि what are the techniques that were used by the scientist in human genome project. तो उसमें आपने दोनों टेक्निक्स के बारे में यहाँ बताना है, मेथडोलॉजीज पे दी हुई है कि कौन से दो मेथड्स और अप्रोचेस उन्होंने यूज की थी. तो फर्स्ट इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड सेकंड इज नोन एज सीक्वेंस एनोटेशन. ठीक है बेटे, तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन बन गए हैं. अब हम अगले पर हैं एंड दैट इज नोन एज द सेलिएंट फीचर्स. ओके बेटे, तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कि जब उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद उन्हें क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स में आपको बताई गई. ओके, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि ह्यूमन जीनोम कंटेन्स, ठीक है, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस. अलग-अलग साइंटिस्ट जो उन्होंने अलग-अलग अंदाजा लगाया था, पर जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट तो उन्हें पता लगा कि ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेकंड उन्होंने बताया कि एवरेज जीन जो है वो 3000 तक बेसेस रखता है. ठीक है, पर जीन्स का जो साइज है वो वेरी कर सकता है. तो उसमें उसने नाम बताया आपको कि द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, सबसे बड़ा ह्यूमन जीन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेसेस प्रेजेंट थे, उसका नेम है डिस्ट्रोफिन. और कितने बेसेस प्रेजेंट थे उसमें? 2.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट थे. ठीक है, फिर वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो इसके अंदर एस्टिमेट किए गए थे, वो टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो थे उसका अंदाजा उन्होंने लगाया था कि 30,000 जो है. ठीक है, कहते हैं कि अंदाजा तो बहुत ज्यादा लगाया गया था पर बाद में जो थे वो उससे कम निकले. उन्होंने 60,000